Hello guys, welcome back to another video. So in previous video we have done with the introduction to exercise 1.5, in which we discuss about the complement of set and some properties about the complement of set. Now we are discussing some practical questions about the complement of set. So means we are doing now NCERT exercise 1.5 chapter sets. So the first question of exercise 1.5 chapter set is, so in this video we have do exercise 1.5. okay, so first question is that in first question we have given with the universal set, and the universal set is 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and we have provided two subsets of universal set. One is A, and whose elements are 1 2 3 and 4, and another subset of universal set is B, and whose elements are 2 4 6 8. We have this information about the first question, and we have solved six parts. So in first question, first part is A complement. So we have to find A complement, and you have clearly know about the complement of a set in the previous video, that the complement of a set means the set of all those elements of universal set, of all elements of universal set which is not in that subset of universal set. Means if we have to find the complement of A, then we are talking about those elements of universal set which are not present in A. In other sense, we can say that A complement is also equal to universal set minus A. So we have to write the elements of universal set which is not in A. Means if we see in the universal set, 1 is present in A, 2 is present in A, 3 is present in A, 4 is present in A. So we don't have to write these elements. We have to write only those elements of universal set which are not present in A, and that elements are 5 6 7 8 and 9. So A complement is 5 6 7 8 and 9. So this is our first part. Now we are going to take the second part, and second part is B complement. So in the similar fashion we also find the B complement. B complements means universal set minus B. Universal set minus B means we have to write those elements of universal set which are not present in the set B. So if we see B set 2 4 6 8, so we don't write 2 4 6 and 8 in the universal set, and we have to write all the remaining elements which are not present in the B, and that elements are 1 3 5 7 and 9. So this is our B complement. Now in third part we see that A union C complement. A union C whole complement means we have to write all those elements of universal set which is not present in A union C. For that, first we have to write the set A union C. Means we have to find universal set minus A union C. So what is U minus what is A union C? A union C, you already familiar with the union of sets. So how we write the union of two sets? We have to combine all the elements of A and C. So but we don't have to repeat the elements. So in A we have 1 2 3 4, and in C sorry, I missed there C. There is also a set C which is equals to 3 4 5 6. Okay, so we have to write A union C means all the elements of A that are 1 2 3 4, and all the elements of C which are 3 4 5 6, but 3 4 we already written, so we only left with the 5 and 6. Okay, so that is U minus the A union C. Now we have to write all those elements of universal set which is not in A union C, and that elements are 1 is present in universal set and also in A union C, so we don't write 1. 2 is also common in universal set and in union C, we don't have to write this. 3 is also there, 4 is also there, 5 is also there, 6 is also there, but 7 8 9 are all those elements of universal set which is not in A union C, so we left with only the 7 8 and 9. This is our A union C complement. Okay, in the similar fashion we have to find the fourth part which is A union B complement, and fifth part we have to write A complement and A complement, A double complement. And you know about the law of double complementation, that is whenever we apply double complementation to the subset of the universal set, the answer should that subset itself. Okay, if we have the A complement, then the answer always be A, then answer always be the A. How this answer will be A, we see in the previous video that. Okay, so see also that part.
Wait a second. Now in fifth part we have to find a complement, and you know that if any set has two complements, and then the answer is always that subset, that is A. And what is A? 1 2 3 4. Okay, so now there is a sixth part. Sixth part is B minus C whole complement. First of all, you have to find B minus C, means B minus C complement means universal set minus B minus C. Now means U minus, first of all we have to find B minus C. B minus C simply means the set of all those elements of B which is not present in C, and the set of all those elements of B which is not present in C are 2 and 8, because 2 and 8 are the only elements of B, which are not present in C. So B minus C is 2 and 8. Now we left with universal set minus 2 8, means universal set minus B minus C, and that is B minus C complement. That means you have to write the all elements of universal set which are not present in B minus C, means we have to write all the elements of universal set, but we don't have to write 2 and 8. So we write all the set of universal set except these two elements 2 and 8. So 1 3 4 5 6 7 and 9. So this is our B minus C complement. Now move on to second question. So I hope you got the clearance of first question. Now we have move on to second question. What is second question? In second question we are provided with the universal set and we have to find the complements of the following sets. So what is our universal set in second question? Universal set is A B C D E, A B C D E F G and H. ठीक है, तो अभी हमें फर्स्ट पार्ट में सेट दिया गया है A इक्वल्स टू ए बी सी, और हमने इस सेट का complement निकालना है. So means we have to find A complement. And what is A complement? A complement is universal set minus A. But does this means? This means we have to write all the elements of universal set except those are present in the A. मतलब कि हमें सारे universal set के elements लिखने हैं, लेकिन उन elements को छोड़ के जो A में भी हैं. अगर मैं A की बात करूँ universal set के, तो A में है तो ये नहीं लिखेंगे, B भी A में है तो वो भी नहीं लिखेंगे, C जो है वो भी A में है वो भी नहीं लिखेंगे, D नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट हम लिख देंगे. एंड दिस सेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. In similar fashion you have to find the second part, third part and D part. I hope you got these three parts also. Now move on to third question. Third question में क्या है, आपको बोला गया है कि आपको taking the set of natural number as a universal set, write down the complements of the following sets. इसमें जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में, आपको वो यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का, एंड आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का थर्ड क्वेश्चन में. तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. In third question, our universal set is set of natural numbers, and natural number is starting with 1 and equally spaced between the successive numbers, means 1 2 3 4 5 6 so on. ठीक है, this is our set of natural numbers taking as the universal set. Okay, now we have to find the complements of the following parts, and there are total of 11 parts. I have to solve the most difficult one parts, and rest you will solve by yourself. So first part is x such that x is an even natural number. All parts are given in the set builder form. तो first part जो है हमारे पास वो है x such that x is an even natural number. This is in set builder form. तो लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास a है और इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. इवन नेचुरल नंबर्स आपके कौन से होंगे? 2 4 6 8 सो ऑन. ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से आप इवन नंबर्स मतलब कि माइनस कर देंगे. आप इसे सेट से भी विजुलाइज कर सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं. देखिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इवन पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स प्लस पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स के बने होते हैं. ठीक है, और अगर आप ए को देखें तो ए आपका इवन नेचुरल नंबर्स है. तो अगर आप पॉजिटिव इवन नंबर्स प्लस
पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर से माइनस कर दें पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स, देन यू आर लेफ्ट विद ओनली द पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इसको करने से पहले आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है पॉजिटिव इवन नंबर्स प्लस पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होता है पॉजिटिव इवन नंबर्स प्लस पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है, मतलब कि अभी आपके इसमें से आपने माइनस करना है ए को, ए क्या है आपका पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है। तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो यू आर लेफ्ट ओनली विद द positive odd numbers, so it's mean a complement is positive odd numbers, that is 1 3 5 so on, okay. In other words or in other sense you can also see we have to write all those elements of universal set which are not present in the A set. So ए सेट में इवन है तो आपको इवन छोड़ देने हैं, बाकी सारे लिखने हैं। तो बाकी सारे लिखने का मतलब आपको 1 लिखना है, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 ए में है और ए क्योंकि ए जो है वो इवन है और 2 भी इवन है, तो इसलिए 2 ए में आता है, इसलिए हम ए को नहीं लिखेंगे बिकॉज हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ए सारे इवन नेचुरल नंबर्स को लेता है, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स को, इसलिए हम यहाँ पे इवन को छोड़ के बाकी लिखेंगे। और इवन को छोड़ के जब भी बाकी आएंगे वो होंगे जो इवन नहीं होंगे, और जो इवन नहीं होंगे वो ऑड ही रहेंगे। तो 1 3 5 हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब आप ऑड का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका मतलब आपको ऑड को छोड़ के लिखने हैं सारे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर ऑड प्लस इवन होता है, तो आप ऑड छोड़ रहे हो तो लेफ्ट किसके साथ रह गए, आप इवन के साथ रह गए। तो सेकंड पार्ट में आपका आंसर आएगा सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वैसे ही जब आप थर्ड करेंगे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको 3 के मल्टीपल सारे छोड़ देने हैं। अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 सब छोड़ देंगे तो आपके पास वो वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। फिर आपके पास है प्राइम नंबर। तो अगर आप नेचुरल नंबर में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उन्हें नहीं लिखें तो आपको प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, मतलब कि आपके पास आएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसी तरीके से आपको मतलब कि ये सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी यहाँ पे आई एम टेकिंग द लास्ट पार्ट 11th पार्ट, और रेस्ट पार्ट जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं उसको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो 11th पार्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन का 11th पार्ट है, हमें फिर से ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। लेट कर लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म है ए, जो कि है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ओके। तो ये हमारे पास दिया गया है, मतलब कि सेट में वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is less than 9, x is greater than 9/2, which means x such that x belongs to natural number and x is greater than 4.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसी को सॉल्व किया 2x + 1 greater than 10 को, तो we finally arrive at x greater than 4.5, okay. Now we have to write all those natural numbers which are greater than 4.5. तो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 4.5 से बड़े हैं, ठीक है। सारे के सारे वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 4.5 से बड़े हैं। तो हमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 4.5 से बड़े हैं, वो होंगे हमारे पास 5 6 7 8 9 सो ऑन, चलते जाएंगे ये, ठीक है। अब इस सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मतलब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, इन अदर सेंस इट्स मीन ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। तो ए में 5 के आगे सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इवन के 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 8 9 10 11 सब आ रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट आपको नहीं लिखने हैं, बाकी जो बचेंगे वो लिख देने हैं यूनिवर्सल सेट के। तो मतलब कि 5 6 7 ये सब के सब आपको नहीं लिखने हैं, तो बचे क्या फिर 1 2 3 4 बचा, तो मतलब कि आपको 1 2 3 4 लिख देना है, ठीक है। तो ये जो होगा 1 2 3 4 ये सेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो आप ईजिली 1.5 कर सकते हो। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट समझना है क्या होता है तो इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर चेक करें, उसमें कॉम्प्लीमेंट हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो नाउ
वी आर प्रोसीडिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है और डी मॉर्गन लॉ को हमें सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था कि अगर हम दो सेट्स की यूनियन करें फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करें तो वो इंडिविजुअली आ जाता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इफ़ यू टेक द ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट देन इट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड आल्सो द सेम इज डन विद द इंटरसेक्शन केस आल्सो। मीन्स इफ वी टेक द ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट देन वी अराइव एट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में बाय टेकिंग द फोर्थ क्वेश्चन एज एन एग्जांपल। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है और हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करना है वहाँ पे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। आपको फोर्थ क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेके 9 तक है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, हमें ए भी दिया गया है, ए जो है वो हमारा है 2 4 6 8 और हमें बी भी दिया गया है और जो बी है वो है हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट प्रूफ करना है विच इज़ द फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ विच इज़ इफ़ वी टेक द यूनियन ऑफ टू sets and if we have to take the complement of the union of two sets then it is equals to a complement intersection b complement। तो ये पहला डी मॉर्गन लॉ हमें इसे प्रूफ करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे यार दोनों इक्वल होते हैं तो ऑब्वियस इक्वल होंगे ही, क्योंकि सेट्स के केस में और कॉम्प्लीमेंट के केस में डी मॉर्गन लॉ होता है ये, और डी मॉर्गन लॉ सेटिस्फाई होता ही है। लेकिन हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे ये जो इस इंफॉर्मेशन से। तो इसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी को कंबाइन करना है, बट रिपीटेड एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, तो लिख दिया 2 4 6 8, और जो बी के एलिमेंट है वो है 2 3 5 7। लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज 2 हमने पहले ही लिख दिया है, रिपीट नहीं करने हैं, तो पीछे रहेंगे 3 5 and 7. So this is our A union B set. Now we have to find the A union B complement. If we take the left hand side, left hand side में है A union B complement. A union B complement means universal set minus A union B. ठीक, तो इसका मतलब आपको A यूनियन B कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो A यूनियन B में नहीं है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है 1, और 1 आपको A यूनियन B में नहीं दिखेगा तो 1 लिख लेंगे। फिर 2 है, 2 आपको दिखेगा, 2 नहीं लिखेंगे। 3 है, 3 नहीं दिख रहा तो 3 लिखेंगे। 4 है, 4 आपको दिख गया यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे। 5 आपको नहीं दिख रहा तो 5 लिखेंगे। 6 आपको दिख रहा है, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं दिख रहा, लिखेंगे। 8 दिख गया, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 8 दिख गया तो नहीं लिखेंगे। ओके, 9 वेट ए सेकेंड, मैं वेट 2 मिनट। एक्चुअली मैं दूसरी साइड नहीं देख रहा था यूनियन बी का, इसलिए वो भी आना था। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है। अगर हम 1 देखें तो 1 हमें कहीं भी नहीं दिखेगा, तो 1 लिख सकते हैं। 2 देखें तो 2 दिख गया है, नहीं लिखेंगे। 3 यूनिवर्सल सेट में है और 3 आपको ए यूनियन बी में भी दिखेगा तो ये भी नहीं लिखेंगे। 4 यूनिवर्सल सेट में है और 4 आपको ए यूनियन बी में भी दिख रहा है तो वो भी नहीं लिखेंगे। 5 यूनिवर्सल सेट में है और 5 आपको ए यूनियन बी में भी दिख गया, वो भी नहीं लिखेंगे। 6 यूनिवर्सल सेट में है, 6 आपको ए यूनियन बी में भी दिख गया, वो भी नहीं लिखेंगे। 7 यूनिवर्सल सेट में है, 7 आपको यहाँ भी दिख गया तो ये भी नहीं लिखेंगे। 8 जो है वो यूनिवर्सल सेट में है और ए यूनियन बी भी है तो ये भी नहीं लिखेंगे। और 9 जो है वो आपको यूनियन बी में नहीं दिखेगा तो सिर्फ 1 और 9 ही आएगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया 1 9। ठीक है, तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड तो आपको पता चल गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 1 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपकी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, वो एलिमेंट होंगे 1 3 5 7 एंड 9। सिंपली आप देख सकते हैं ये वो वाले एलिमेंट हैं सारे यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, और इसी की तरह मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालूंगा, वी कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस बी, मतलब कि आपको यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो वो कौन से एलिमेंट होंगे, वो सर होंगे 1 4
6, 8 एंड 9, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं यूनिवर्सल सेट के जो आपको बी में नहीं दिखेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये सेट और बी इंटरसेक्शन मतलब कि ये सेट, इन दोनों की अगर आप इंटरसेक्शन करें तो आपको क्या मिलेगा। इंटरसेक्शन हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपको वो पढ़ना हो तो आप देख सकते चेक कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब यू हैव टू टेक द कॉमन एलिमेंट्स इन दीज बोथ सेट्स। तो कॉमन एलिमेंट तो एक 1 है, दोनों में है, और एक आपको दिखेगा 9 और कोई नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब 1 और 9 है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 9 आया था। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो लॉ है ये इस इंफॉर्मेशन से, फोर्थ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे प्रूफ हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, उसमें इस यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस किया और इस इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस किया है। आई होप वो आप इजिली कर लेंगे, ठीक। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लेट यू विद ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, मतलब कि एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स आएंगे उन सभी ट्राइंगल्स का जो सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। और इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो है set of all triangles in a plane, और आपका जो A सेट है वो है set of all triangles with at least one angle, with at least one angle different from 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आप इसे ध्यान से देखें, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, मतलब कि उस प्लेन में सारे के सारे ट्राइंगल्स होंगे, हर टाइप के ट्राइंगल्स होंगे, स्केलर, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल, मतलब कि ये सारे के सारे एंगल्स होंगे आपके पास। ठीक है, स्केलर, इक्विलेटरल, ये सब आएंगे। उसमें से वो एंगल्स, वो ट्राइंगल्स भी होंगे जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ राइट ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन में राइट ट्राइंगल भी होंगे उसके प्लेन में, और उस प्लेन में आपको जो एक एंगल 90 डिग्री का होता ही है, और 90 डिग्री का एंगल आपका 60 डिग्री के एंगल से डिफरेंट है। तो इसका मतलब वो एंगल, वो जो ट्राइंगल्स होंगे वो आपके ए सेट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए सेट कह रहा है कि मेरे अंदर वो वाले ट्राइंगल्स हैं जिनका एक एटलीस्ट एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल प्लेन में जिसका एक एटलीस्ट एक एंगल, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से छोटा है तो वो ट्राइंगल आपका ए में आ जाएगा। ठीक, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि आपने यूनिवर्सल सेट के वो सारे ट्राइंगल ले लेने हैं जो ए में नहीं है। और देखिए ए के अंदर कौन से ट्राइंगल्स थे, ए के अंदर वो ट्राइंगल हैं जिनका एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो उनको छोड़ दें तो बाकी कौन बचेगा? तो बाकी वही बचेंगे जिनका एंगल एक 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, अगर ठीक है ना, अगर मतलब कि सपोज कीजिए 2 काइंड्स ऑफ पीपल्स हैं, गुड पीपल्स एंड बैड पीपल्स। तो अगर मैं बोलूँगा कि ए सेट के अंदर बैड पीपल्स हैं, तो ठीक, ए सेट के अंदर कौन सी पीपल्स हैं? बैड पीपल्स हैं। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, इसका मतलब वो बैड पीपल निकालने पड़ेंगे, तो बचा क्या? गुड पीपल। वैसे ही ए जो है उसके अंदर वो सारे ट्राइंगल्स हैं जो जिसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब आपको वो सारे ट्राइंगल छोड़ने पड़ेंगे जिसका एक एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री से, तो बाकी सारे जो ट्राइंगल बचेंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वो सारे ट्राइंगल वो वाले यूनिवर्सल सेट के ट्राइंगल होंगे जिसका एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा। तो सिंपली इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट के वो सारे ट्राइंगल्स जो एक एक कंडीशन को नहीं मानते, और एक ही कंडीशन थी कि वो वाले ट्राइंगल जिनका एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो इसका मतलब वो वाले सारे आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में ट्राइंगल्स जिसका नॉट इवन वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री।
वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका देखो ना, ए सेट में थे वो सारे ट्राइंगल जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, लेकिन अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो फिर सारे ट्राइंगल नहीं लेंगे, तो इसका मतलब फिर वो वाले ट्राइंगल आएंगे जिनका एक भी एंगल 60 डिग्री के डिफरेंट ना हो। इसका मतलब अगर एक भी एंगल आपका 60 डिग्री के डिफरेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा कि वो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, और जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे ट्राइंगल्स लिए जिसका एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब उसके सारे एंगल अगर 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है तो इसको सम ऑफ एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की वो भी माननी पड़ेगी, और कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। अगर छोटे लेंगे 60 डिग्री से सारे, तो इसका मतलब कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे, 60 ही होंगे, और जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं वैसे ट्राइंगल को बोला जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इट्स मीन जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल triangles. So this is your A complement. I hope you got the clarity. Okay, now the last question of this exercise which is fill in the blanks. तो fill in the blanks के 4 पार्ट हैं आपके पास, तो वो हम करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स की। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7th। सी 7th क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। सेकंड पार्ट है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एंड फोर्थ पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इधर क्या आएगा वो देखना है। अगर आप ए की यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपका क्या आएगा बताएं। ये हमने कल करवाया था आपको, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। कल वाली वीडियो देखें, उसमें इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आता है। आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सल सेट लेते हैं ये और आप ये लेते हैं, तो पहले क्या लिखा है ए, मतलब कि ए की यूनियन करनी है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये होगा सारा, दिस शेडेड रीजन इज ऑल ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इस शेडेड रीजन को ए के साथ मिक्स कर देना, तो फिर ए भी आ जाएगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा ही शेड हो गया। तो पूरा का पूरा ये सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट, इसलिए इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सेट। नाउ फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फाई कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। कैसे होता है वो आप पिछली वीडियो में से देख सकते हो। फाई कॉम्प्लीमेंट इज योर यूनिवर्सल सेट, इट्स मीन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज व्हाट, इनमें से छोटा कौन है, ए है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, नाउ थर्ड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे देखा था अभी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट, ए को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज आवर ए। Okay, now A complement means this all shaded region. A complement means we have to मतलब कि हमने जो हमारे पास A है उसे छोड़ देना है, तो वो हमारा सारा का सारा जो शेडेड रीजन होगा वो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब इस शेडेड रीजन की आपने इंटरसेक्शन कर देनी है A के साथ। तो मुझे बताओ शेडेड रीजन और A के बीच कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी आएगा इसका आंसर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट में है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। सो हमने प्रीवियस वीडियो में फिर से यू की कॉम्प्लीमेंट देखा था, और यू का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, और अगर फाई की इंटरसेक्शन करते हैं आप ए के साथ तो आपको फाई ही मिलता है। आप मतलब कि फाई से जीरो में इन द टर्म्स ऑफ सेट्स वी कैन टेक फाई एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि खाली सेट, कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ नहीं कि आप इंटरसेक्शन करेंगे एक के साथ तो दोनों में कॉमन भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि फाई ही होगा वो। तो फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई मीन्स यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई, बिकॉज यू complement is nothing but is 5. Okay, so this is all your exercise 1.5. I hope you got the clarity. If you like the video, please subscribe, share and comment, and do share with your friends. Thank you so much.